Very good morning, class. Welcome to the chemistry world. Today, I am going to teach you microorganism, friend and foe of class 8 science by Divya Malvya. So, let's start. First of all, recall previous knowledge. So, microbes are extremely small organisms that cannot be seen with naked eyes. Microbes are extremely small organisms जिनको हम naked eye से नहीं देख सकते. They are also called microorganisms. उनको हम क्या बोलते हैं? Microorganisms. Microbes को हम microorganism भी बोलते हैं. Okay, examples क्या है इसके? Bacteria and fungi. See, as you can see here, see microbes. Now, microbes are not always harmful to us. Microbes बिल्कुल भी harmful नहीं होते हमारे लिए. मतलब सारे microbes जो होते हैं they are not harmful to us, but also helpful many a times. In this lesson, we will learn about both friendly as well as harmful microbes. इस लेसन में हम पढ़ेंगे दोनों friendly as well as harmful microbes. Okay, so microbes are classified into four groups. First is bacteria, then fungi, protozoa, algae, and viruses. Viruses is an exception. हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि viruses how it is an exception. So they are classified into four groups. First is bacteria, then fungi, then protozoa, then algae. Then fifth is viruses, which is an exception. Okay, now let's study classification of microbes. So first is bacteria. Bacteria are one of the oldest life forms. So bacteria are one of the oldest life forms. They are unicellular, that is made up of only one cell. They are unicellular होते हैं, that is made up of only one cell. सिर्फ एक सेल से मिलके बनते हैं ये bacterias. Okay, they appear in variety of shapes and sizes. ये variety of shapes और sizes में हमें दिखते हैं, जैसे कि spherical, elongated and spiral. Spherical मतलब गोल, जैसे sphere होता है sphere की shape में, ठीक है. Elongated means long. Okay, जैसे rods होते हैं, rods की shape में elongated means long. Curved rods, curved spiral shape में, जैसे कि ये spiral है ना, curved rods जैसे ये spiral होते हैं. Okay, so spherical, elongated and spiral. So they live in colonies. ये किस में रहते हैं? Colonies में, मतलब ग्रुप में रहते हैं. इनकी colonies होती है, मतलब बहुत सारे ग्रुप में रहते हैं. ये अकेले नहीं रहते. They do not live singly. They live in colonies. See, as you can see here, this is an intestine. This is bacteria. Okay, हमारे intestine में भी एक bacterias होते हैं. Okay, so they live in colonies. ये colonies में रहते हैं और ये different shapes के होते हैं, जैसे कि spherical, elongated और spiral. They are unicellular, that is made up of only one cell. एक ही cell से मिलके बनता है. और some of them are autotrophic. कुछ autotrophic होते हैं, means they make their own food, while others are heterotrophic, मतलब कि जो खुद नहीं बनाते, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए. ओके, दिस इज heterotrophic. So next, see, as you can see, coccus, spherical, bacillus, elongated, curved rod, spiral. ठीक है, ये सारे microbes हैं. Now fungi. See, fungi, as you can see here, fungi. This is fungi. This is yeast. You would have seen fungi as a white layer on bread when you leave it outside at room temperature for quite few days.
आपने देखा होगा कि जो फंगाई होते हैं कि अगर हम ब्रेड को बाहर रख दें, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, तो हमको उसके ऊपर वाइट लेयर्स ही मिल जाती है, ठीक है, वाइट लेयर्स ही मिल जाती है, दैट इज फंगाई। उसको क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं फंगस लग जाती है। तो जैसे हम किसी फूड को हम बाहर रख देते हैं तो उसमें फंगस लग जाती है, तो दैट इज फंगाई। ओके, सो फंगाई गेट फेवरेबल कंडीशंस एंड देयरफॉर दे ग्रो। उनको उनकी फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है, मतलब कि वार्म टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर एंड मॉइस्ट प्लेस, जहाँ पे उनको उनकी मनपसंद कंडीशन मिल गई कि जहाँ पे उनको गर्माहट मिले, वार्मथ मिले और थोड़ा सा मॉइस्चर हो वहाँ पे, तो वहाँ पे वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जो ब्रेड को हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है, ताकि वो फ्रेश रहे, ठीक है, ताकि उसमें फंगस ना लगे। क्योंकि फंगाई जो होते हैं वो गर्म जगहों में, गर्मी में और मॉइस्चर में उग जाते हैं, तो इसलिए हमको अपने फूड को, अपने खाने को हमें कहाँ स्टोर करके रखना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज, कूल प्लेस में। ओके, सो दैट उसमें फंगस या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करें। सो फंगाई आर मल्टी सेल्यूलर। फंगाई क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। ये बहुत सारे सेल से मिलके बनता है। दे आर heterotrophic मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, मतलब ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। दे लिव इन कॉलोनीज एंड प्रेफर वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस टू। ठीक है, तो ये कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब ग्रुप में रहते हैं ये, ठीक है। और क्या प्रेफर करते हैं ये, वार्म मतलब गर्म और मॉइस्ट मतलब थोड़ा मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट को प्रेफर करते हैं ये, ठीक है। ये वहीं उगते। दे आर इमोबाइल, मतलब ये मूव नहीं कर सकते, दे आर इमोबाइल। एंड सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फंगाई आर यीस्ट एंड मशरूम मोल्ड्स। ओके, तो ये इस मशरूम दे आर द एग्जांपल्स ऑफ फंगाई। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। दे आर यूनिसेल्युलर। Protozoa, they are mostly unicellular, that is made up of one cell, Some of them are autotrophic, ठीक है। They prefer moist and aquatic habitats. They can live singly, unlike bacteria and fungi. Some common examples of protozoa are amoeba and paramecium. मतलब कि प्रोटोजोआ जो होते हैं they are unicellular, मतलब made up of only one cell, सिर्फ एक सेल से मिलके बनता है प्रोटोजोआ, ठीक है। दे आर सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफिक, मतलब वो अपने खाना खुद बनाते हैं, दे मेक देयर ओन फूड, ठीक है। दे प्रेफर मॉइस्ट एंड एक्वेटिक हैबिटेट, ये भी थोड़ी मॉइस्ट, मतलब जहाँ पे मॉइस्चर हो और जहाँ पे पानी हो वहाँ पे ग्रो करते हैं, वहाँ पे ये प्रेफर करते हैं ऐसा एनवायरनमेंट, ठीक है, जहाँ पे मॉइस्चर हो और जहाँ पे पानी हो, ठीक है। दे कैन लिव सिंगली अनलाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई, तो दे लिव सिंगली, मतलब ये कॉलोनीज में नहीं रहते, अनलाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई। ओके, सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ आर अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा एंड पैरामीशियम आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ। लाइक दिस, देखो अमीबा, देखो ये डायग्राम में अमीबा की शेप ऐसी होती है, ठीक है, इसमें ये और ये पैरामीशियम। ओके, लाइक पैरामीशियम में देखिए सिलिया, ये मूव कर सकते हैं, ये दे आर मोबाइल, दे मूव कर सकते हैं, ये सिलिया की हेल्प से मूव कर सकते हैं, ठीक है। इनमें न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, फूड वैक्यूल्स, जहाँ पे फूड स्टोर करते हैं अपना, ठीक है, फूड बनाते हैं, साइटोप्लाज्म, दिस इज वैक्यूल, ओके, सिलिया, दैट इज सिलिया की हेल्प से ये लोग मूव करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ पैरामीशियम, ठीक है, ये पैरामीशियम है जिसमें कि इसके ये मूवमेंट करते हैं किसकी हेल्प से, सिलिया की हेल्प से। दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक है, दिस इज फूड वैक्यूल्स, ओके, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, ये
So this is the diagram of, see, in amoeba this is nucleus, this is cytoplasm, this is pseudopodia, मतलब अमीबा भी मूव करता है, ओके, दे आर इमोबाइल. दिस इज न्यूक्लियस. सी दिस इज, ये फूड है, ये इसको इंगल्फ कर रहा है, ये अमीबा है, देखो इसको फूड को इंगल्फ कर रहा है. तो so next is algae. What are algae? They are multicellular. मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है. They are multicellular. They are prefer mostly aquatic habitats. मतलब ये प्रेफर क्या करता है, एक्वेटिक, जहाँ पे पानी हो, वाटर हो, रिवर हो, ठीक है, वहाँ पे ये एल्गी ग्रो करते हैं. सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी आर स्पायरोगेरा, ठीक है, एंड क्लैमिडोमोनस. स्पायरोगेरा होता है, देखो एज ये, दिस इज स्पायरोगेरा. सी इट इज इन ग्रीन कलर, इट इज शेप लाइक दिस, लॉन्ग जो रॉड जैसी शेप है इसकी, ओके, ग्रीन कलर का होता है. और क्लैमिडोमोनस का डायग्राम ये है, ठीक है. देखो इसमें फ्लैजिलम, जहाँ से ये अपना फूड लेता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, ये है इसका न्यूक्लियस, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये आई स्पॉट, ये माइटोकॉन्ड्रिया. सी माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा होगा साइंस में, ओके. सो ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आई स्पॉट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये न्यूक्लियस है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, फ्लैगलम है, जहाँ से ये फूड लेता है, ओके. सो दिस इज एल्गी. So they are multicellular. They prefer mostly aquatic habitats. Some common examples of algae are Spirogera and Chlamydomonas. Now, last is viruses. Viruses is an exception. They are also microscopic. But they are not considered as microorganisms. ये वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं आते. दे बिहेव लाइक नॉन लिविंग व्हेन आउटसाइड होस्ट सेल. जब ये होस्ट सेल के बाहर होते हैं, आउटसाइड होते हैं, तो वो नॉन लिविंग होते हैं. दे आर इनएक्टिव, मतलब वो कोई एक्टिव, दे आर इनएक्टिव. और जब वो इनसाइड द होस्ट सेल दे रिप्रोड्यूस, मतलब होस्ट सेल के अंदर ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके. सो जैसे कि जैसे कॉमन कोल्ड है, ठीक है, तो हमारे ये जब आउटसाइड द बॉडी रहेंगे तो ये इनएक्टिव रहेंगे, दे नॉन लिविंग. बट जब व्हेन दे कम इनसाइड द होस्ट सेल दे रिप्रोड्यूस, ठीक है. और वायरसेस तब हमको ये अफेक्ट करता है, ठीक है. तो ये हमारे बॉडी के अंदर जाके ही एक्टिव होता है और रिप्रोड्यूस करता है, और बाहर क्या होता है, इनएक्टिव होता है, नॉन लिविंग, ओके. तो ये होता है वायरसेस. वायरसेस के एग्जांपल क्या है, लाइक कॉमन कोल्ड, ठीक है, कोरोना वायरस इज ऑल्सो एन वायरस, ओके. इट इज नॉट एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट इट इज अ माइक्रोस्कोपिक. So they behave like non-living when outside host cell and reproduce only when inside the host cell. So this is the virus. See, okay. Now viruses के example क्या है, common cold and coronavirus like HIV. So these are the examples of viruses. Now thank you so much for today, and next topics we will cover in next presentation. Okay, thank you.